Hello student, in previous video I explained you table tag and attributes of table tag, for example cell spacing, cell padding, row span, call span, etc. Now today I will explain you A tag. A tag means anchor tag. Anchor tag is used for linking. Linking means move from one page to another page or from one section to another section of the same page. For example, if you want to move from one page to another page, then the process is known as linking, and if you want to move one section to another section of the same page, then the process is also known as linking. There are two types of linking in HTML. First, external, and second, internal. External linking means if you want to move from one page to another page, then the linking is known as external linking. मतलब कि सेम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे अगर मूव कर रहे हैं तो वो होगी एक्सटर्नल लिंकिंग, क्योंकि पेज चेंज हो रहा है. एंड इंटरनल लिंकिंग मीन्स इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम पेज. पूरा एक पेज है और आपका पेज इतना बड़ा है कि आप बॉटम पे जाने में आपको उसमें टाइम लगता है, तो आप टॉप से बॉटम पे जो लिंक क्रिएट करते हो, दैट type of linking, this type of linking is known as internal linking. Now first I explain you external linking. For example, we create two page, first.html and second.html. First.html contain one text, first page, and second page contain one text, second page. Now if you want to create one word and if you want to move from this page to this page, means from first page to second page, using word click, means when we click on click word, then the second page will be open. आप चाहते हो कि जैसे इस click word पे click हो आपका second page open हो जाए, और इसमें भी second page पे भी आप एक word चाहते हो back, जैसे इस back बटन पे click करो तो आपका first page open हो जाए, then the linking is known as external linking. Now how it is possible? First, write down the code of first.html file. Code of first.html file. HTML, head, title of the page, for example first, then title close, then head close, then body, then write down one line first page. Now create hyperlink href. Href is an attribute of anchor tag. Href is an attribute of anchor tag that is used to specify the address URL of the second file where you want to move. जहां पे आपको मूव करना है उस फाइल का एड्रेस जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज लेते हैं. href means hyper reference. Then write down the name of second file, second.html. Then write down the word that you want to link. जिस वर्ड को आपको लिंक करना है वो वर्ड आएगा then anchor tag close. मतलब कि वो वर्ड जो है वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन लिखना है, तभी वो उस पे हाइपरलिंक क्रिएट करेगा. नाउ क्लोज बॉडी टैग and close HTML tag. Now
कोडिंग ऑफ सेकेंड पेज। आगे के सारे टैग सेम है तो मैं आपके वापस यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बॉडी टैग तक। नहीं, राइट डाउन या आफ्टर बॉडी टैग मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बॉडी टैग, देन राइट डाउन वन लाइन, सेकेंड पेज, then use anchor tag and use hyperreference attribute. Hyperreference, I repeat, hyperreference attribute is used to specify the address of file where you want to move. जहां आपको मूव करना है उस फाइल का एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे अब मुझे सेकेंड पेज से फर्स्ट पेज पे जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा first.html। आपको यहाँ पे पूरा पाथ लिखना होगा, पूरा यूआरएल लिखना होगा और मैंने आपको बताया यूआरएल आपको कैसे कॉपी करना है। फर्स्ट यू ओपन द फाइल इन गूगल क्रोम, देन फ्रॉम एड्रेस बार कॉपी द यूआरएल, कॉपी द पाथ ऑफ द फाइल, देन राइट डाउन द वर्ड दैट यू वांट टू लिंक एंड देन एंकर टैग, क्लोज, देन बॉडी क्लोज। यहां पे मैंने वो वर्ड लिख दिया जिसको मुझे लिंक करना है। इसका आउटपुट क्या होगा जब आप फर्स्ट फाइल को ओपन करोगे गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे ये पेज आपको ऐसा शो होगा। इस पेज को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये पेज आपको ऐसा शो होगा। व्हेन यू क्लिक ऑन क्लिक वर्ड, जैसे ही आप उस पे क्लिक वर्ड को क्लिक करोगे तो आपका ये सेकंड पेज डिस्प्ले हो जाएगा और फर्स्ट पेज जो है वो हाइड हो जाएगा। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन बैकवर्ड, जैसे ही सेकंड पेज पे आके आप बैकवर्ड पे क्लिक करोगे अगेन आपका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और सेकंड पेज जो है वो हाइड हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें तो हमने क्या किया है, एक वर्ड को क्लिक किया है कि एक वर्ड यूज किया है लिंकिंग के लिए। नाउ इफ यू वांट टू यूज इमेज एट द प्लेस ऑफ वर्ड, अब आपको यहाँ पे वर्ड नहीं यूज करके कोई इमेज यूज करनी है कि जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करो, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट की है या उस फ्लिपकार्ट पे आप पर्टिकुलर आइटम के पिक्चर पे क्लिक करते हो तो वो आइटम की डिटेल्स ओपन हो जाती है। उसी टाइप से अगर आपको किसी इमेज पे क्लिक करना है तो देन द लिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। कैसे होगा मैं इसी में आपको चेंज करके बता देती हूँ। जैसे आपको यहां क्लिक वर्ड की जगह कोई इमेज डिस्प्ले करनी है, यहां पे मैंने वर्ड ही रखा है बैकवर्ड। बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो वापस फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेज में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। फर्स्ट पेज में मैंने वर्ड की जगह अब यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले कराया। When we click on image, then the second page will be open. अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूं तो आपका सेकेंड पेज ओपन हो जाना चाहिए। Then how it is possible? Again use anchor tag. Then write down or copy the address of second file. Then एट द प्लेस ऑफ वर्ड, जहां पे हम एंकर टैग के इन बिटवीन वर्ड लिख रहे थे वहां पे हम यूज करेंगे इमेज टैग, क्योंकि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं इमेज टैग। तो जहां पे मैं वर्ड लिख रही थी क्लिक का, एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मैं वो वर्ड लिख रही थी जिसको मुझे लिंक करना है। अब मुझे इमेज को लिंक करना है तो एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग में मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, इमेज टैग यूज करना होगा। तो इमेज src इक्वल्स टू राइट डाउन द पाथ ऑफ द इमेज, वही यूआरएल आपको यहाँ पे कॉपी करना है। यूआरएल कैसे कॉपी करोगे वो मैंने प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज। अगर आपको हाइट और विड्थ सेट करनी है इमेज की तो वो सेट करके, मतलब इमेज टैग को जैसे आप यूज करते हो एज इट इज वैसे ही आपको इसको इमेज टैग को यूज करना है। देन आफ्टर इमेज टैग क्लोज एंकर टैग, और इमेज टैग के बाद में आपको क्या करना है, एंकर टैग को क्लोज करना है। तो अब जैसे ही आपका ये फर्स्ट पेज डिस्प्ले होगा, जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करोगे, व्हेन वी क्लिक ऑन इमेज देन द सेकंड पेज विल बी ओपन। तो मतलब कि अब हमने क्या लिंक किया है, इमेज को एट द प्लेस ऑफ वर्ड। दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू hyperlink anchor tag practically. So first we open one file, for example exp2.
मैं 2 फाइल इसमें से ही मैंने आपको भी बताया था। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक दैट इज यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। हमें अगर एक पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्टली मूव करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? एंकर टैग मीन्स हाइपरलिंक टैग। नाउ फॉर एक्सप्लेनिंग हाइपरलिंक टैग वी क्रिएट 2 फाइल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ exp2 और exp3 2 फाइल्स क्रिएट कर रखी है, इसी के थ्रू मैं आपको हाइपरलिंक समझा देती हूँ। नाउ फर्स्ट वी ओपन exp2 इन नोटपैड। पहले exp2 को नोटपैड में ओपन करेंगे, तो ओपन विथ नोटपैड। अब मुझे क्या करना है? exp2 से मूव करना है exp3 पे। मतलब कि मुझे एक वर्ड यूज करना है, क्लिक वर्ड। अगर मैं उस क्लिक वर्ड पे क्लिक करूं तो मेरा नेक्स्ट फाइल जो exp3 है वो ओपन हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं कैसे यूज करूंगी? href इज यूज फॉर हाइपर रेफरेंस दैट इज यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द सेकेंड वेब पेज। जो सेकेंड फाइल है, सेकेंड वेब पेज है, उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये दोनों सेम लोकेशन पे है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका नेम भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ exp3.html। क्योंकि सेम लोकेशन में दोनों डेस्कटॉप पे ही है इसलिए मैं डायरेक्टली उसका नेम स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अदरवाइज आपको फुल पाथ URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। URL कैसे कॉपी कर सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ राइट डाउन द वर्ड अब आपको क्लिक वर्ड को क्या करना है? हाइपरलिंक करना है। तो ये आपके एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आएगा। जिस वर्ड को आपको लिंक करना है उसको आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के इन बिटवीन लिखना होगा। नाउ कंट्रोल एस, सेव अ फाइल, मिनिमाइज द फाइल एंड ओपन exp2 इन गूगल क्रोम। ओपन विथ गूगल क्रोम। Now see, one word will be display, click। when we click on click word, जैसे मैं आप इस क्लिक वर्ड पे ले जाऊंगी, देखो आपका आइकन चेंज हो गया। यहाँ पे आपको हैंड आइकन शो हो गया। जैसे ही आप इस क्लिक पे क्लिक करोगे ये आपकी सेकंड दूसरी फाइल exp3 ओपन हो गई। पहले हम कहाँ थे? exp2 पे। यहाँ पे देखिए पहले हम कहाँ हैं? exp2 पे। जैसे ही मैंने इस क्लिक वर्ड को क्लिक किया कौन सी फाइल ओपन हो गई? exp3। I hope you all are clear how to create hyperreference. I repeat again, for example, if you want to create one word in exp3 as hyperlink word, जैसे exp2 से exp3 पे आए, अब मुझे exp3 से वापस exp2 पे जाना है, मतलब बैक जाना है, तो मुझे यहाँ पे एक बैक वर्ड यूज करना है for hyperlink। then open exp3 in notepad। then use anchor tag again, href। I repeat, href is used to specify the name of the file where you want to move। उस फाइल का नेम लिखने के लिए यूज होता है जहाँ पे आपको जाना है। exp2 पे जाना है। किस नेम से मुझे एक वर्ड को, कौन से वर्ड को हाइपरलिंक करना है? बैक वर्ड को। then anchor tag close। कंट्रोल एस, सेव कर दिए, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मैं वापस exp2 वाली फाइल ओपन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके exp2 पे एक वर्ड आ रहा है क्लिक। जैसे इस क्लिक वर्ड पे क्लिक करूंगी ये आपकी सेकेंड फाइल को ओपन कर देगा, मतलब कि जो exp3 है। और जैसे इस exp3 वाले बैक वर्ड पे क्लिक करूंगी आपकी वापस कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी? exp2 वाली फाइल ओपन हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। ये जो लिंकिंग होती है ये कौन सी लिंकिंग कहलाती है? एक्सटर्नल लिंकिंग। वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू यूज इमेज एट द प्लेस ऑफ वर्ड, जहाँ पे हम क्लिक वर्ड यूज ले रहे हैं उसकी जगह पर मुझे कोई इमेज यूज करनी है कि जैसे मैं उस इमेज पे क्लिक करूँ सेकेंड पेज ओपन हो जाए। देन
at the place of click we use image tag, image src equals to, then write down the address of the URL of the image. मुझे यहाँ पे इमेज का URL चाहिए, तो इमेज का URL कैसे मिलेगा आपको, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जो भी आपकी इमेज है, सपोज मेरी ये इमेज है, इसको मैं ओपन विथ करूँगी गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनी वन, एनी ब्राउज़र. ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे ये इसका एड्रेस है. इस एड्रेस को क्लिक किया, कंट्रोल C कॉपी किया, इसको क्लोज कर दिया और नोटपैड वाली फाइल पे आके इस एड्रेस को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V. अगर आप इसकी हाइट और विड्थ भी सेट करना चाहते हो तो हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो. इमेज की हाइट इक्वल्स टू सपोज 100 एंड विड्थ इक्वल्स टू 100. नाउ कंट्रोल S, Alt tab and open Internet Explorer. Now image will be displayed when we click on image. अब जैसे ही मैं इमेज पे ले जा रही हूँ, देखो कर्सर चेंज हो रहा है, हैंड आइकन शो हो रहा है. जब आपको हैंड आइकन शो हो रहा है इट मीन्स हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है. अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपकी exp3 न्यू फाइल ओपन हो गई. मीन्स अब जहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली उस इमेज टैग को यूज करना है. इमेज टैग को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. जब एंकर टैग को ओपन करते हैं और जो क्लोज करते हैं उसके बीच में हम जो भी चीज यूज लेंगे वो उसको हाइपरलिंक क्रिएट कर देगा, उस पर्टिकुलर चीज पे वो हाइपरलिंक क्रिएट कर देगा. अगर वर्ड यूज लिया है तो वर्ड पे हाइपरलिंक कर देगा, और अगर कोई इमेज ली है तो उस इमेज को हाइपरलिंक कर देगा. ओके, थैंक यू. In next video I will explain you internal linking, means move from one section to another section of the same page. डॉक्टर, आपका बहुत नोबल प्रोफेशन है. आपको आपके प्रोफेशन का वास्ता है. प्लीज हेल्प मी. गिव मी एवरीथिंग फॉर अस. जल्दी आ. फोन चेक. ले. He's a champion, you're a champion, everybody is a champion. Gail is a champion,